मध्य समस्त शिक्षा गुरु समस्त चरण मोर प्रणाम। मोर विश्वास राय कॉलेज प्रिंसिपाल महोदय तथा आमर अति घनिष्ठ पूज्य कैलाश सार अन्य समस्त लेक्चर वृंद समस्त स्टाफ वृंद समस्त मोर स्नेहर छात्र छात्री वृंद समस्त मोर प्रणाम। हरे कृष्ण। समस्ते हाथ जोड़िबा भगवान को प्रणाम करी आम कार्यक्रम आरंभ करिया। हे कृष्ण करुणा सिंधु समस्ते मो साथ कहबे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। राधा रानी को प्रणाम। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हमको यही कॉलेज रे किसी समय भगवत गीता विषय देथियो जोगु मु आमर प्रिंसिपल महोदय को और अन्य समस्त लेक्चर वृंद को और छात्र छात्री वृंद को मोर बहुत बहुत धन्यवाद। सार तो पूर्व कहते जे मु उमाचरण पट्टनायक इंजीनियर स्कूल जड़े स्टूडेंट थी। पूर्वर ये पाटपुर कॉलेज रे जॉइन करती जितेबाला सेठू इंटीमेशन आसला ये गोटे 15 दिन कि मसे खंडे भी क्लास करची हाई स्कूल क्लास होता से क्लास भी करची बहुत कम दिन कि मुझे जॉइन कली से तेणु मुझे कॉलेज गोटे स्टूडेंट पूर्व थी। आज आलोच्य विषय आमर है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता कौन देख आम सब पाठ पढ़ुं आमर मैथमेटिक्स अच्छी फिजिक्स अच्छी केमिस्ट्री अच्छी ना नहीं बायोलॉजी अच्छी हिस्टोरी अच्छी इत्यादि बहुत गुड़ी सब्जेक्ट अच्छी। मोबाइल सब बंद कर दियो। अरे मोबाइल रे जते समय बर्बाद करछ वर्तमान पई किछि समय आसी उत्कट समय रे जेतेबेले कृष्ण समय रे जलर आवश्यक अछि। जल जेतेबेले आसीला वर्षा हला ताको आमे पात्र रे धरिबा ने से पात्रटा किमिन धरिबा एंती सीधा कर रखिले किछि पडिबो उल्टे देबा कि वर्षा सरी जीवो गोटे टोपा भी आसीबोनी आ जदी एपट सेपट हे जीवो कणा कर दबो सेडा भी टोपे रहइबोनी। त मु कहउतली सुनिबा तरीकाटा कोन जीवनटा केते दिन ब्रह्म ज्ञान जो थे जीवन परिवर्तन हम तेणु समस्त नवेदन मोबाइल गुड़ा को देखो ना तुम मान मोबाइल गुरुत्व ना कथा गुरुत्व से भागवत प्रवचन कथा चली पूरा साइलेंस रहा गाने शुणा। सो गोटे सब्जेक्ट
ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ନୈତିକ ବିଦ୍ୟା ନୀତି ଶିକ୍ଷା ବା ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ଜିନିଷକୁ କହିଥିଲେ ମୋର କହିବା ପରେ 15 ମିନିଟ୍ ରହିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତମେ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ନଚେତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଦେବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ କହିଲେ, ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଭଗବତ ମାନେ ହେଲା ଭଗବାନ। ଭଗବତ ଶବ୍ଦରୁ ଭଗବାନ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା ମାନେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ କି ଗୀତା କୁହାଯାଏ? ଭଗବତ ଗୀତା। ଯିଏ କଣ ମନେକର ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସାଇ ଗୀତା, ମାନେ କଣ? ସେ ସାଇ ଯାହା ଗାଇଛନ୍ତି ସାଇ ଗୀତା। ଯିଏ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଗାଇଛି ତାକୁ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ପଢିବା ଦରକାର? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ଆକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଭଗବତ ଗୀତା। ଯେତେବେଳେ ଏ ଭଗବତ ଗୀତା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ତମର ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆମର କେତେ କଣ ପୁରାଣ ଅଛି, ପୁରାଣ ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମୂଳ ପୁରାଣ ହେଲା ବେଦ। ମୂଳ ପୁରାଣ କଣ? ବେଦଟି କେତେ ପ୍ରକାର ବେଦ ଅଛି? ବେଦ ବିଭାଗ କରାଯାଏ 4 ପ୍ରକାର। ଆମେ ପାଠ ବି ପଢିଛନ୍ତି ଏଇଟା। ଋଗ୍ବେଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବେଦ ପରେ ସେ ବେଦ ଗୁଡାକ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଲା କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସିଏ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସଦେବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ ବ୍ୟାସଦେବ କହୁ, ସିଏ ବ୍ୟାସଦେବ ରୂପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗକୁ ସିଏ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ପ୍ରକଟ ହେଇ ସେ ବେଦର ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରି ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 18ଟା ପୁରାଣ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ବେଦରୁ ବେଦାନ୍ତ ଆସିଲା, ବେଦରୁ ଉପନିଷଦ ଆସିଲା, ବେଦରୁ ପୁରାଣ ଆସିଲା, ପୁରାଣ ପରେ ମହାଭାରତ ଲେଖିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଏତିକି ହେଲା ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥ। ବେଦ ପରେ ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ, ଉପନିଷଦକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରି ପୁରାଣ ଲେଖିଲେ। ସେ ପୁରାଣ କେତୋଟି ପୁରାଣ? 18ଟି ପୁରାଣ। କେତୋଟି ପୁରାଣ? ସେ 18ଟି ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରାଣ, ଅନ୍ତିମ ପୁରାଣ ଯାହା ଲେଖିଲା ପରେ ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। ସବୁ 17ଟା ପୁରାଣ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 18 ନମ୍ବରଟା ସେ କଣ ହେଲା? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। କଣ ହେଲା? ତାପରେ ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ବି ଲେଖିଥିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ। ତା ଦ୍ୱାରା ବି ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ସେ ହେଇପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ମହାଭାରତ। ସେ ମହାଭାରତରେ 1 ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। କେତେ ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ? ତାକୁ 18 ଭାଗ କରାହେଇଛି। ମହାଭାରତ କେତେ ଭାଗ କରାହେଇଛି? 18 ଭାଗ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ପର୍ବ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଭାଗ କଣ କୁହାଯିବ? ପର୍ବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ହେଲା ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ। ଏଥିରେ କି ପର୍ବ? ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ। ସେ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବର 25 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 42 ଶ୍ଲୋକ, 42 ଅଧ୍ୟାୟ ବେଦାନ୍ତ କଲେ, ଉପନିଷଦ କଲେ, ପୁରାଣ କଲେ, ମହାଭାରତ କଲେ। ହେଲା? ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 18ଟି ପୁରାଣ। 18ଟି ପୁରାଣ ଭିତରୁ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରାଣ, ସବୁଟା ଯାହା ଲେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ କଲ୍ୟାଣ ହେଲା, ସିଏ ହେଲା ମହାପୁରାଣ। ତାକୁ ସେ ମହାପୁରାଣ ନାଁ କଣ? ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲେ ଏ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ମହାଭାରତ ବି ଲେଖିଥିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବ୍ୟାସଦେବ। ସେ ବ୍ୟାସଦେବ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ମହାଭାରତର ବହୁତ ଲମ୍ବା, ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି। ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ 2 ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯାହା ନାହିଁ ତା ଜଗତରେ କୋଉଠି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ମହାଭାରତରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ମହାଭାରତ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଯାହା ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ ତା ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ, ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ସବୁ ଉତ୍ତର ମହାଭାରତରେ ଅଛି। ବହୁତ
इंटरेस्टिंग ग्रंथ महाभारत से महाभारतर श्री 18 केतोटी केते भाग कराई छी 18 भाग कराई छी ताकू गोटी गोटी भाग को कोन कह जाए पर्व से पर्व रु गोटी हला भीष्म पर्व जो महाभारत युद्ध हला युद्ध समय रे जेते दिन पर्यंत भीष्म युद्ध करथिले जो प्रथम टू आरंभ करी 10 दिन पर्यंत तांकर जे सब स्टोरीटा तांक जिक्की पर युद्ध हला ताकू भीष्म पर्व कहते से भीष्म पर्वर 25 अध्याय ठारू आरंभ करी 42 अध्याय पर्यंत जो 18टा अध्याय रहला से 18टी अध्याय को श्रीमद् भगवत गीता कहते वर्तमान मु पचारिबी प्रश्न संगे संगे काहे पर भूली दिलु किए कहब नहीं जे कहब हाथ केवल उठेब भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण भितर फरक कौन कहीं कथबार्ता हेनी जी जानिछ जी मन रखिल हाथ उठेब कह बस ये से हाथ उठे लगी सुना जाओनी हो से ए बॉक्सटा के आगु से खबोगी ना काम करोगी ऊपर पिला माने जदी एही प्रश्नर उत्तर दे परिबनी ताले म आगु किछ कहबे न सरी गला मोर संगे संगे कहू जदी बुझी परलो नाही ता माने मोर कहबार किछ भूल अछि जा करे कन बुझी पर बस बुझिला माने जे बुझिला बोले हां बोला से हाथ उठा बुझिला माने कौन अरे एक्सप्रेस करो अरे भूल भी होगा भूल रो ठीक है बना नहीं हम साइंस आथिले हाई स्कूल रे से पचारे से भाई सबले कहले कि भारत राजधानी कोन गोटे पिला कहला बेकार जने बॉम्बे हां गुड पारे भूल के हो पिला साथ कर ले आबे ओ वो अपन के कहले क्वेश्चन आवे भगवत गीता कहा कहा जाए गोटे प्रश्न उत्तर दीटा प्रश्न भूल छाड़ देली गोटे प्रश्न भगवत गीता कहा कहा जाए केते भाग होला एटा 18 भाग ना नहीं सेतरो भागटा गोटे पर्व होला ना नहीं से पर्व रे गोटे भीष्म पर्व अछि ना नहीं भीष्म पर्व रो 25 रु 42 25 टा मिसियो 42 टा मिसियो 18 टा होला ना नहीं सेटा श्रीमद् भगवत गीता आ जो अष्टादश पुराण कले अष्टादश पुराण रो लास्ट को जोडा कहिगिरी से शांति अनुभव कले एते पुराण शास्त्र वेद वेदांत सब रचना कले शांति पाउ नथिले व्यासदेव जोडारे रचना करिगिरी से निजको शांति अनुभव कले नारदन को जोडा की आदेश रे नेतृत्व रे तांकर प्रेरणा रे सेटा होची श्रीमद् भागवत महापुराण 18 कोडा लास्ट टा श्रीमद् भागवत एटा भीष्म पर्व रो 25 रु 42 केते हला सेटा भगवान कर मुख निस्तृत बाणी सेटा होची भागवत गीता सुनले ना हबो सारे कहिले सार कहिला पर मध्य के कहबा उठा केना पुनी समझे को हरे कृष्णा भक्त बांधव अनुसरण पिला जे हाथ उठे भूल भी कहले मत बहुत खुशी लागियो किसी न पाइबो तार मजा नहीं ये बात था हां धन्यवाद चिराग आगो हरे कृष्णा हरे कृष्णा पीछे से हम फेल नहीं व्यासदेव तांकर जहाँ सब पुस्तक लिखिते से भीतर महाभारत काहे लिखिते जहाँ के श्री
କରିଥିଲେ ଓ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଲେଖିଥିଲେ। ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ 18ଟି ପୁରାଣ ଲେଖିଥିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ। ସେଇ 17ଟି ପୁରାଣ ଲେଖିଥିଲେ ଓ 18 ନମ୍ବର ପୁରାଣ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ତାହାକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ମହାପୁରାଣ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଗବତ ମହାପୁରାଣ କହିବେ। ଆଉ କେବଳ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯାହା ବାଣୀ ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସଠିକ ସରଳ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ନାମରେ କହିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୁଏ। ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାର ବହୁତ ଇମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦେବାର କାରଣ ହେଲା ସମୟ ବହୁତ କହୁଛି ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି କାରଣ ହେଲା ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲା ସମୟରେ ଆମେ ଭାଗବତ ଗୀତା କହିବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଗ୍ରାମାର ମିଷ୍ଟେକ୍। ଭାଗବତ ଗୀତା ନାହିଁ आ କେତେ ରହିବନି ଭଗବତ ଗୀତା ତ ନାହିଁ ତରେ ହଣ ଶ୍ରୀମଦ ରହିଲା ଦୁଇଟା ଶ୍ରୀମଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାଗବତ ରହିଲା ଭ ଆକାରେ ଭା ଗ ବ ତ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଯାହା ଲେଖିଲା ପରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ସେଥିରେ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ସେଥିରେ କେତେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି? ତାକୁ 12 ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଭାଗକୁ ସ୍କନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କଣ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। ଭଗବତ ମହାପୁରାଣ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। କଣ କହିଲି? ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଲା ଭାଗବତ ଯୋଉ ମହାଭାରତର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଯାହା କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଥିଲେ ମୁଖନିସୃତ ବାଣୀ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? କିଏ କହିଦେଲେ ହାତ ଉଠା। ତମେ କହିଲ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିଟା ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ, ଡିଫରେନ୍ସ ମନେ କର ସ୍ପେଲିଂ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। ଏ ଯୋଉ ଭଗବତ ଆଉ ଭାଗବତ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଡିଫରେନ୍ସ ବତେଇବି। ତମେ ଆଜି କଣ ଶୁଣିବ? ଧନ୍ୟବାଦ। କଣ ଶୁଣିବ ଆଜି? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଭଗବତ ଗୀତା, ଭାଗବତ ଗୀତା ନାହିଁ, ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଆଉ ଭଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ? ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋଟାମୋଟି ଏଥିରେ 700 ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ଯେତିକି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ହେଇଛି ଏଟା କେତେ ଶ୍ଲୋକ? 700 ଶ୍ଲୋକ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟା ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି, ତମେ ସମସ୍ତେ ମତେ ମୋ ସାଥିରେ ବୋଲିବ, ତମେ ଶିଖିବ ଗୀତା କିପରି ପଢାଯାଏ। ହେଲା ନା? ହାତ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଯୁତ୍ସବଃ ମାମକଃ ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିମ କୁର୍वत ସଞ୍ଜୟ। এই প্রকার ସବୁ ଯାକ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। এই ଯୋଉ ଟୁଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ସବୁ ଗୀତା ପଢିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ଆଉ ସରସ ଲାଗିବ। ହେଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କଣ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ 5ଟା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି କଣ କଣ? ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଇତ୍ୟାଦି 6-7ଟା ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି। ଠିକ ସେଇପରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ 5ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କେତେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି? କେତେଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି। କେତେଟା ଅଧ୍ୟାୟ? କେତେଟା ସବଜେକ୍ଟ? 5ଟା ସବଜେକ୍ଟ କଣ କଣ ମୁଁ କହିବି, ତାପରେ ପଚାରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆତ୍ମା କଣ ବା ଜୀବ କଣ, ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ କଣ, ଆତ୍ମା
बा जीवर स्वरूप कौन तापर परमात्मा परमात्मा किए परमात्मा का स्वरूप कौन आत्मा परमात्मा तीन टॉपिक तापर कहले प्रकृति प्रकृति कौन तापर कहले कर्म कर्म काहू कहा जाए कर्म विभिन्न प्रकार किपर से काम होउछ से विषय बहुत बुझे पता अछि आ उला काल काल समय समय के गति होउछ समय किपरि होउछ किपरि मला पर जन्म होउछी ए सब बड़ा वर्णना करछ केतना सब्जेक्ट ये कोई पर का हाथो हाथो काम कोई के हाथो के हां तो तब कोई से हाथो के तो बात कर लो ना मैंने चित्र बंद कर ऐसे पसंद का से कोई दिले जो से कोई दिले ताकू सांस दिया हो जे न कोई दिया हो से जो करे ना अब एगला ना ये देखो ये जिनिस गुड़ा तुम जानो ना तुम जीवन में बहुत किस काम आछे बहुत काम आछे अच्छा वर्तमान में पांचटा संज्ञा कइल वर्तमान कर्म आत्मा काहू कहा जाए परमात्मा काहू कहा जाए कर्म काहू कहा जाए काल काहू कहा जाए आ गोटे कोन प्रकृति रो ए पांचटा विषय वर्तमान मु कहबी तापर पचारि होते तेणु से कहबो से जिगाई करे गोटा जीव आमे माने के गोटे जीव मु पचारि वर्तमान अब तुम नाम कोन राजा पात्र धन्यवाद से कहले मो ना होची राजा पात्र मु पचारि तमे किए मनुष्य मनुष्य समझते तमे गोटे जाति विशेष है गला तुम मु कॉपी में पचार तमे की बस हु एम आई मु की देखो मु पते की पचारि बोले मु कहू मो नाम पचारि तू तू किए मो ना रो कोइ दोसी मो ना रो कोइ मु के कोइ पाबो तो उदाहरण देता प्ला बुझ पाइबो हमर इतिहास रे अलेक्जेंडर द ग्रेट अछि ना सुनछो अलेक्जेंडर द ग्रेट जेतबेले से विश्व विजय करा पे इच्छा कले सेतबेले से ताको गुरु पाखु गले ता गुरु कहले मु विश्व विजय करा पे चाहूची आपण मते किछु उपदेश दियो से कहले ना तमे जदि भारत वर्ष जयलाभ करदल तामे तो विश्व विजय हे से समय भारत एते महान थिला एते शक्तिशाली थिला तो भारत जदि विजय लाभ करला तारे कोन करियो विश्व विजय तमे हे हेले आलेक्जेंडर कहले कॉन्फिडेंस देगी पर निश्चय भारत मु जयलाभ करी आपनकर युद्ध विद्या शिक्षा लाभ करछि मु निश्चय जयलाभ करी हेले भारत वर्तमान मु चाहूची आपण में कोन आंदेली बसले से कहले भारत दुईटा जिनिस महान से दुईटा जिनिस मोबाइल आंदो तो कोन गोटे हला श्रीमद् भगवत गीता आरो हला ओके साधु भारत साधु एते महान जगत को वाले को पाइबो भारत साधु और कोन से आसी अलेक्जेंडर भारत को पराजय करले ताकर गुरु कथा माने पड़ला गुरु कहले गीता आना पे बोले ताकर सम्मान करते कहले जा गीता खोजो से गीता खोजी पाले से माने पाइले गीता भी दे दे अलेक्जेंडर को बोले आ वो गुरु कहले साधु आना पे बोली साधु कोन बोले कि साधु जानि कोन तेणु से कहला खोजो बोला जोड़ के साधु थी वो पचार बोले के साधु जी कहबो ताको धरे ए सम्मान खोजी साधु माने कोना रहउथिले से सम्मान खोजी गोटे बणे प्रवेश करे बणे प्रवेश करे देखि गोटे साधु ध्यान बस और लोग बोले लोग के ना साधु है तबले चल पाछे से साधु कर देह के तेज हतुला से तो पावरफुल देखाउथिले से सम्मान डर लगता छुया पे जदि से माने शक्तिशाली तू छुई पास हम जबरदस्ती करि पारुथिले तुम साथी आसो करे साधु चलो से बोले कोन होला तमे के ना आमे हो अलेक्जेंडर द ग्रेट कर हम हो सैन्य आ अलेक्जेंडर द ग्रेट कहछथि तुमको आपस में जिया पड़िबो सी होछि वर्तमान भारत राजा सी तुम राजा को पराजय कर दिछथि ताको आदेश माने तुमे बाध्य आ तुम चालो से कहले हमर मोर राजा
जड़े अच्छा मु अलग राजा को ग्रहण करें बोले हाँ तुम ग्रहण बोले बोले कौन करे तारे ना तुम तुम राजा को कहि दियो जे मु काबू माने नहीं के राजा मोर राजा जड़े बोले सब सेवान पास कहले डॉक्टर तो जानि नाती किसी कोई ना से मारपीट करी आनी बोली तार खबर देबा जाई अलेक्जेंडर ग्रेट से कहली एपरि घटना से कौतूहल हो गले कौतूहल हो जाई से आसिले साधु साधु कहले बोले मो गुरुदेव का आदेश हेछि आ तुमको जान पाई बोली आ तुम मो साथी चलो से साधु पछले तमे की से बोले मो नाम से अलेक्जेंडर दा ग्रेट तम ना अलेक्जेंडर दा ग्रेट तमे की से केबे प्रश्न सुन नथिले मु किए ए सुन नथिले बहुत आश्चर्य लागला बोला कोन आपण पछले मु किए हां तमे कहलो तमर नाम से अलेक्जेंडर ग्रेट तू तमे की से गन नहीं अलेक्जेंडर ग्रेट तार सामने गन है जाई से पचारे बोले कृपा कर ये प्रश्न उत्तर आप देबे तो तमर गुरुकर आदेश रे जो बहिटा जवाब देई नेबा ପାଇଁ कहउछथि सेतिरे उत्तर लेखा मु होछि आत्मा मु के आत्मा ए आत्मा दा कोड आसीला परमात्मा रो येला अंश तंतरी गीता रो 15 अध्याय 7 नंबर श्लोक रे भगवान श्री कृष्ण कहउछथि ममेव अंश जीव लोके जीवभूतः सनातनः ए जो आत्मा दा होछि ए जीवडा होछि कार अंशडा परमात्मा रो अंश से परमात्मा होछि श्री कृष्ण से परमात्मा किए श्री कृष्ण से कहले आत्मा होछि मोर अंश तेन करी हमर सर्कट परिचय होला मु किए आत्मा आ मु होछि भगवान श्री कृष्ण रो अंश बा तांकर दास बा तांकर सेवक जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास केही मानु केही न मानु सबे कृष्णर दास के करू मानिबी तू न माने किंतु प्रैक्टिकली तू होजु से बापा को तू कहू बापा को जानली मो बापा को पदरली मो बापा को जानली न रे तू जगत कहब तू होजु तार को नाही ठीक सही बोली जने मानु कि न मानु आमे समस्ते कार संतान श्री कृष्ण संतान तनकरी गीतार श्रीमद् भगवत गीतार चतुर्दश अध्याय 4 नंबर श्लोक रे भगवान कहले सर्वजोनिषु कौन्तेय समझते बोलो सर्वजोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममः जोनि अहं बीज प्रदपिता भगवान क्लियर कर जेते खाली मनुष्य नाही पशु पक्षी कीट पतंग गछ लता जहाँ अछि ए समस्त सर्व जोनिषु कौन्तेय हे कौन्तेय सर्व जोनिषु जेते बड़ा जीव जंतु अछंती ए समस्तकर पिता ता किए जानवर को अर्जुन ए कुंती पुत्र अर्जुन जानवर को मोह पिता तेणुकरी आम परिचय कौन मुख्य आत्मा एवं कृष्ण को संतान कृष्ण मोर पिता कृष्ण मोर माता कृष्ण मोर समस्त प्रथम प्रश्न उत्तर मिला एक टॉपिक से आउट बहुत किसी अच्छी हम शॉर्टकट से जान सकते परमात्मा के परमात्मा श्री कृष्ण सी समस्त सृष्टि करछथि श्री कृष्ण ना विषय से कहछथि मत्तः पर सत अध्याय सत अध्याय को 5 नंबर श्लोक 6 नंबर श्लोक मत्तः परतरं नास्ति मत्तः परतरं नास्ति मो थारु जगत रे आउ अधिक बोले किछि नाही तापरे मत्तः परतरं नास्ति सत मत्तः परतरं नास्ति तो समते संस्कृत के पढ़ते हैं कि क्या पढ़ते संस्कृत हाँ नहीं
ଅସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ମତ୍ତଃ ପରତରଂ ନାସ୍ତି किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वं इदं सर्वप्रोतं सूत्रे मणि गणाइव बोले जगत रे जहा किछि भलो बोली देखुछ जहा किछि वस्तु देखिछ ए सबु जाक भितर मुही अछि जोडा भलो बोली भाबु सबुठु सी होछि मोर शक्ति बोली जान मत्तः परतरं नास्ति मो थारु अधिक जगत रे किंचित नास्ति किछि भी नाही मयि सर्वं इदं प्रोतं सूत्रे मणि गणाइव सूत्रे सूत्र माने सूता सूता रे आमे सब मणिडा यूज करू मणिडा को होतदी मणिर माला वाला जेपरि सब मणिडा रे माला वाला रे सूता जिम तार वाला मेन तार सूत्रडा ठीक सही परि जगत रे जहा किछि भलो देखुछ मणि मणि भाबु तमय ए सब जागा तार अंतर्निहित शक्तिरा कोन अछि मो तार परचार तापर आउरी बहुत किछि कहछथि से मो होछि जगतर माता पिता मो जगत सृष्टिकर्ता मो थार देवता मान सृष्टि हेछथि मो थार ऋषि मान सृष्टि हेछथि मो थार सब जीव सृष्टि हेछथि तो बताइए भगवान किए ना भगवान थार ब्रह्मा सृष्टि हेछथि भगवान थार शिव आछथि भगवान देवता आछथि समस्त काला आछथि भगवान मूल किए से भगवान का किए श्री कृष्ण अच्छा वर्तमान बच्चा धनवान का होगा जाए ज्ञानवान का होगा जाए भगवान का होगा जाए भगवान सिंपल